Good morning, student. Welcome back to another video of Civics Chapter 1, the Indian Constitutions. In previous video, mistakenly there are no sound, no voice. So we will record this video again. So basically, we will discuss about the key features of Indian constitutions. Okay, what are the key features of Indian constitutions? So we all know some of the most key features of Indian constitutions. While we reading this, keep in mind the above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economic reform, and representation that our authors of this document were grappling with. Try and understand the way in which they tried to balance this concern with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. So the first key features of Indian constitutions is federalism. What is federalism? This is refers to the existence of more than one level of government in the country is called federalism. Simple. Okay. Just like in India, we have government at the state level and at the center, and also Panchayati Raj is the third tier of government, and you have read about in your class 6 books पंचायती राज सिस्टम. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम यानी एक पंचायत लेवल की गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है. तो जहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो उसको हम कहते हैं फेडरलिज्म. ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट. Okay, the vast number of communities in India mean that a system of government needed to be devised, and that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. मतलब लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ नहीं हो कि सिर्फ एक लोग जो कि दिल्ली में बैठ के और सारे डिसीजन मेक करे, बल्कि कुछ पावर उसके बदले इंस्टीड इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट in the state so that decision could be made for the particular area. Okay, while each state in India enjoy authority in exercising power on certain issues. ये बहुत सारे इशूज़ पे स्टेट को पावर होती है, बहुत सारे स्टेट पे पंचायत को पावर होती है और बहुत सारे यानी इशूज़ पे सेंट्रल को पावर होती है. तो हर कोई अपने अपने लेवल पे कुछ पावर को मतलब जो है वो इन्जॉय कर सके उसके लिबर्टी को. ये सब सारी चीज़ें होती है फेडरलिज्म. नेक्स्ट है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ऐसा हो जो कि एक पार्लियामेंट बने उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट चलाए. ठीक है, ऐसा मतलब कोई किंग रूल या कोई मोनार्च सिस्टम इस तरह के नहीं होने चाहिए. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए. मतलब द डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल. You read in also class 6. Okay, Constitution of India guarantee universal adult suffrage for all citizens. When they are making the constitutions, the member of Constituent Assembly feel that the freedom struggle has prepared and masses for universal adult suffrage. Okay, and this would help encourage the democratic mindset and break to the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. It is. This means that people of India have a direct role in इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. मतलब इसमें एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जहाँ पे लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने. ठीक है, और फिर वो जाके उनका एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए काम करे, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाए और उनको सॉल्व करे. दीज रिप्रेजेंटेशन आर अकाउंटेबल टू द पीपल. ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो पीपल्स के लिए अकाउंटेबल है. You will read more about why representation is crucial in unit 2. Okay, next key feature is separation of power. According to the constitution, there are three organs of government. These are legislature, executive and judiciary. अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ लेजिस्लेचर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. लेजिस्लेचर मींस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अ फॉर्म ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हम चुनते हैं और वो जो मेंबर्स बनते हैं चाहे वो हमारे पंचायती सिस्टम में हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो. ठीक है, तो ये जो मेंबर्स होते हैं ये लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लेजिस्लेचर्स द्वारा कोई भी लॉ मेकिंग किया जाता है पब्लिक के बेसिस पे, कोई रूल कोई रेगुलेशंस. ठीक है, तो उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है. बेसिकली एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि इंडिया में सिविल सर्विसेज के ज़रिए इलेक्टेड होते हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वो पब्लिक सर्विस का फील्ड हो,
आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, पुलिस सर्विस का फील्ड हो, चाहे रेवेन्यू सिस्टम का फील्ड हो, ठीक है, चाहे सिक्योरिटी का हो, अलग अलग लेवल्स पे जो है यूपीएससी के थ्रू एग्जीक्यूटिव इंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि जिनका मेन वर्क होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। उसके बाद एक है जुडिशरी, ठीक है, मतलब पावर को सेपरेट किया अलग अलग जगह पे, एक लेजिस्लेचर में, एक एग्जीक्यूटिव में, एक जुडिशरी। जुडिशरी आप वर्ड से समझ गए हो। एक जुडिशरी जो सिस्टम होता है हमारा कोर्ट सिस्टम, वो चाहे पंचायत लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, हाई कोर्ट, जैसे कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, इस तरह की सेपरेशन है, जिसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसी भी तरह की लॉ अगर वायलेट हो रहा हो किसी का भी, या कोई भी लॉ का मिसयूज़ कर रहा हो, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, या कोई एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं, कोई आईएएस है या कोई नेता है, कोई भी तरह का मिसयूज़ करता है, या फिर कोई पब्लिक है किसी का राइट्स को वायलेट करता है, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होनी चाहिए, जो कि इसके ऊपर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अपना डिसीजन दे। ओके, ये चीज़ें बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर में आपको ये समझना होता है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल्ड में 1 बाय 1 फंडामेंटल राइट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी आप सेक्युलरिज्म देख लें, ठीक है, वो भी हमारा एक की फीचर्स है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो की फीचर्स है वह सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट in one in which the state does not officially promote any one religion at the state religion. We will read more about this in the following chapter. Basically सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि किसी भी स्तर पे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो पंचायत का हो, स्टेट का हो या सेंटर का हो, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, या एज ए स्टेट रिलीजन, ठीक है। ये तो मतलब क्या है कि सेक्युलरिटी बनाए रखना है, ठीक है, एक सेक्युलरिज्म जो है कंट्री का, उसको हमेशा यानी कि कीप करना है। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस outlined above involve complicated ideas that were often not easy to grasp. Don't worry too much about this for the moment. In the rest of book you will see the higher classes. Basically, secularism means the constitutions play a crucial role of lying out of the idea that we would like to all citizens of the country to other to, including the representation that we elect to rule, or just like in the game of football, a change of constitutions rule in the affect the game. Indian constitution has been amended over the year to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of the country. Okay, we will show the example of Nepal and NDC. Okay, so basically these are the 5 key features of Indian constitution. You can make a short notes of all 1 by 1 points and send them in the group. Okay, what is the Indian key features of Indian democracy. Okay, and after that, in second video after fundamental right, we will discuss the exercise question and answer. I hope you enjoyed it. Have a nice day. Goodbye.